हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिथम्स देखेंगे और आज हम देखेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स टू एनी बेस a where a is greater than 0 and a is not equal to 1। सो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, इफ m and n आर पॉजिटिव rational, if m and n are positive rational numbers, then log of m into n to the base a will be equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। इसे शॉर्ट में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, logarithm of m into n is equal to logarithm of m plus logarithm of n, या log of m into n is equal to log of m plus log of n। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, that is the log of the product of the two numbers is equal to the sum of their logs। सो अब हम फर्स्ट लॉ का प्रूफ देखेंगे, दैट इज log of m into n is equal to log of m plus log of n। सो इसके लिए लेट log of m to the base a is equal to x। हमने मान लिया कि log of m to the base a का वैल्यू x के बराबर है। दिस इंप्लाइज यदि इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, सबसे पहले यहाँ बेस लिखेंगे, रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा m। सो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ log, बाय द डेफिनेशन ऑफ log a raised to the power x will be equal to m। नाउ अगर हम यहाँ लिखें let log of n to the base a is equal to y, सो हमें मिलेगा a raised to the power y is equal to n। यहाँ हम लिख सकते हैं by the definition of log। सो by the definition of log हमें मिला a raised to the power y is equal to n। सो जब हम m into n लें, m into n करेंगे, सो हमें यहाँ मिलेगा a raised to the power x into a raised to the power y। सो हमें मिला m into n is equal to a raised to the power x into a raised to the power y। दिस इंप्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं mn will be equal to a raised to the power x plus y। बेस यहाँ सेम है, सो पावर ऐड होगा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं by the laws of indices, या हम लिख सकते हैं by the laws of exponents। दिस इंप्लाइज हम यहाँ लिखेंगे a raised to the power x plus y is equal to mn। सो हम यहाँ लिख सकते हैं logarithm of m into n to the base a is equal to x plus y। सो यहाँ हम लिख सकते हैं logarithm of m into n to the base a is equal to x plus y। सो यहाँ हम लिख सकते हैं by the definition of log, by the definition of logarithm। So by the definition of logarithm, if a raised to the power x plus y will be equal to m into n, so हम यहाँ लिख सकते हैं logarithm of m into n to the base a is equal to x plus y। So अब हम यहाँ x और y के वैल्यू को पुट करेंगे। So by putting the value of x and y, we will get logarithm of m into n to the base a is equal to x का वैल्यू है हमारा logarithm of m to the base a और y का वैल्यू है logarithm of n to the base a। So by putting the values of x and y, we will get logarithm of m into n will be equal to logarithm of m plus logarithm of n। So इस तरह से हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। सो यदि हम फर्स्ट लॉ का जनरलाइजेशन करना चाहें, सो हम लिख सकते हैं इफ m, n and p are any three positive rational numbers, three positive rational numbers, then क्या होगा, logarithm of m into n into p to the base a will be equal to logarithm of m to the base a plus logarithm of n to the base a plus logarithm of p to the base a होगा। सो यदि हम फर्स्ट लॉ का जनरलाइजेशन करेंगे, सो इफ m, n and p are any three positive rational numbers, then logarithm of m into n into p will be equal to log of m plus log of n plus log of p।
सो अब हम सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। सो इफ, यहाँ सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, इफ m and n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल numbers, then logarithm of m by n to the base a will be equal to logarithm of m to the base a minus logarithm of n to the base a। इसे हम शॉर्ट में इस तरह से भी कह सकते हैं, log of m by n is equal to log of m minus log of n। सो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दैट इज द log of the ratio, the log of the ratio of two numbers, the log of the ratio of two numbers is equal to the difference of their logs। सो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द log of the ratio of the two numbers, that is log of m by n, is equal to the difference, that is log of m minus log of n, difference of their logs। सो अब हम सेकंड लॉ का प्रूफ देखेंगे। सो सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ मान लेंगे, लेट log of m to the base a is equal to x। हमने मान लिया कि log of m to the base a is equal to x है। दिस इम्प्लाइज यदि एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, हम बेस लिखेंगे रेस्ट टू द पावर x विल बी इक्वल टू, हमें मिलेगा n। इसी तरह से यदि हम यहाँ मान लें लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज हमें मिलेगा a रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू n। सो हमें मिला a रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू n और a रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू n। यहाँ हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग। सो यदि हम m डिवाइडेड बाई n करें, सो हमें यहाँ मिलेगा a रेस्ट टू द पावर x डिवाइडेड बाई a रेस्ट टू द पावर y। दिस इम्प्लाइज m बाई n विल बी इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर x माइनस y। सो यहाँ हम लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर x डिवाइडेड बाई a रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर x माइनस y। सो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय द लॉज ऑफ इंडिसेस, बाय द लॉज ऑफ इंडिसेस या बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू m बाई n। सो हमें मिला a रेस्ट टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू m बाई n। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग हम यहाँ लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस y। यहाँ हम लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग। सो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू, अब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। सो x का वैल्यू जो है लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a माइनस y का जब वैल्यू रखेंगे लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। सो इस तरह से यहाँ हमें सेकेंड लॉ का प्रूफ मिलता है। सो अब हम थर्ड लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। सो थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है, इफ m n are positive rational numbers, are positive rational numbers, then logarithm of m raised to the power n to the base a will be equal to n into logarithm of m to the base a, that is logarithm of m raised to the power n is equal to n log m। सो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे लेट लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x है। दिस इम्प्लाइज यदि एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, हम यहाँ लिखेंगे a रेस्ट टू द पावर x विल बी इक्वल टू, हमें मिलेगा m। सो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, बाय द डेफिनेशन ऑफ log। So by the definition of log, if log m to the base a is equal to x, this implies हमें मिलेगा a raised to the power x, a raised to the power x is equal to m। So if we take the power n both sides, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पावर n लें, so हमें मिलेगा a raised to the power x raised to the power n is equal to m raised to the power n। This implies यहाँ हम एक्सपोनेंट्स के नियम से लिख सकते हैं a raised to the power x into n, that is nx।
विल बी इक्वल टू हमें मिलेगा m रेज टू द पावर n। सो हमें मिला a रेज टू द पावर nx विल बी इक्वल टू m रेज टू द पावर n। दिस इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू x। सो यहाँ हमें मिला लॉगरिथम ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू nx। यहाँ लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ log। दिस इंप्लाइज logarithm of m raised to the power n to the base a is equal to n into और x का वैल्यू यहाँ जब हम पुट करेंगे हमें मिलेगा logarithm of m to the base a, that is logarithm of m raised to the power n is equal to n log m। सो इस तरह से हमें थर्ड लॉ का प्रूफ मिलता है।